Hi guys, so let's discuss question number 6. Again, an amazing question और placement friendly question. ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है. So let's see how we're gonna approach this. So like first line, char str1 is equal to tigers, char str2 is equal to coron, char star s1 is equal to str1, star s2 is equal to str2, while star s1 plus plus is equal to star s2 plus plus. Printf percentage comma str. बहुत सारे concepts clear होने वाले हैं. ठीक है. तो char str1 is equal to tigers. तो मान लो मेरे पास ये एरे है tigers. स्ट्रिंग की एंडिंग नल से मान लो बेस एड्रेस 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 and this is your str10 1 2 3 4 5 and this is str16 fine. Now next is your coron, coron/0. Let's suppose the address starts from 8 9 10 11 12 30. This is your str20 1 2 3 4 str2 5 fine. Now next line, char star s1 is equal to str. So what do you mean by this? है बहुत छोटी सी चीज पर पता होना चाहिए यार. char str s1 is equal to str2 का मतलब ये है कि मेरे पास एक पॉइंटर है char star s1 and this s1 is containing what str. And what is this str? Str is nothing but your name of array. So whenever it comes the name of array means what? The base address of the array, or you can say the base address of the 0th element of the array. So str1 is this array. So when you write str1 0 is t, but when you write simply str1, since str1 is name of array means the base address of the 0th element of the array. Therefore your pointer s1 is containing the address which is 1. I'm again repeating. When you write char str s1 is equal to str1, it means s1 is a pointer and this pointer is pointing to the base address of the string str1, and the base address of the string str1 is 1. So s1 is pointing at 1. Similarly star s2 is equal to str2. str2 again is nothing but name of array. So name of array means the base address of the 0th element of the array, and that address you are assigning it to pointer variable s2. So your s2 is pointing at 8. So after this line you can understand by this that s1 is pointing at 1 and s2 is pointing at 8. Now this line is very important. While star s1 plus plus is equal to star s2 plus plus. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है that star s1 is equal to star s2. Then after that you wanna increment s1 and s2. ये तीनों लाइन जब कंबाइन होती है तो ये लाइन बन जाती है. ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना. That star s1 plus plus is equal to star s2 plus plus means that star s1 is equal to star s2, and later on you want to increment s1 as well as s2. See, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता हूँ. तुम यहाँ पे s1 s2 को इंक्रीमेंट कर सकते हो बिकॉज ये क्या आपके पॉइंटर है, पर तुम str1 को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, तुम str2 को नहीं इंक्रीमेंट कर सकते बिकॉज ये एरे है और एरे का नाम क्या होता है? बेस एड्रेस होता है, और एड्रेस को आप कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, याद रखना. ठीक है, यू कैन ओनली इंक्रीमेंट द पॉइंटर बट यू कैन नॉट इंक्रीमेंट द एरे एड्रेसेस. यहाँ पे कभी अगर str1 प्लस प्लस होता या str2 प्लस प्लस होता तो एरर आंसर होता, बिकॉज एरे एड्रेस को आप कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंटर को कर सकते. ठीक है, सो फार सो गुड राइट. एंड देन वी आर प्रिंटिंग str. अब हो क्या रहा है? अब देखो while, अब यहाँ पे क्या है? स्टार s2 is equal to स्टार s1. सबसे पहले यही वैल्यू है तो स्टार s2 is equal to स्टार s1. s2 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 8 पे. इसका स्टार क्या हो गया? c. ये c आपने कहाँ पे रिप्लेस कर दिया? s1 के स्टार पे. s1 का स्टार क्या है? t. इस t की जगह पे क्या आ गया? इस t की जगह पे आ गया मेरा c. राइट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. स्टार s2 मेरा पॉइंट कर रहा था 8 का स्टार है c. इस c को मैंने असाइन कर दिया कहाँ पे? s1 के स्टार पे. तो s1 का स्टार पहले t था, अब t की जगह पे क्या आ गया? c. ठीक है, ये चेंज हुआ. उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके बाद प्रिंट करा रहा हूँ str1. अब मेरे को बताओ str1 जो मेरी स्ट्रिंग है वो चेंज हो गई, क्या हो चुकी है? साइगर्स बन चुका है. ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा साइगर्स. ठीक है, और ये देखो मैं प्रिंटर में प्रिंट कर रहा हूँ, मैं प्रिंटर में s1 नहीं प्रिंट करा रहा, आई एम प्रिंटिंग str1. तो str1 चेंज नहीं हुआ है. ये मत सोचना कि str1 को तुमने इंक्रीमेंट किया, नहीं, str1 कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं किया, वो तुम कर ही नहीं सकते.
ठीक है, इंक्रीमेंट S1 प्लस प्लस, फिर ठीक है, फिर दोबारा लूप चली। अब बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट था तो आपका S1 इंक्रीमेंट होके 2 पे आ गया था और S2 इंक्रीमेंट होके कहां पे आ गया, यहां पे आ गया था 9 पे, इस लाइन के बाद। अब तुम दोबारा क्या कर रहे हो, S2 अब कहां पे पॉइंट कर रहा है, 9 का स्टार क्या है O, उसको तुमने रिप्लेस कर दिया I के स्टार 2 के स्टार से, तो यहां पे क्या आ गया, O आ गया। ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग क्या हो गई, अब ये स्ट्रिंग हो गई सुगर्स। ठीक है, तुम बिकॉज परसेंटेज इसमें str1 है, ठीक है, S1 नहीं। अब नेक्स्ट में फिर दोबारा पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहां पे आ गया, 3 पे आ गया, ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहां पे आ गया, 10 पे आ गया। फिर तुमने ऐसे ही r को रिप्लेस कर दिया, ये g रिप्लेस हो गया, g के यहाँ पे क्या आ गया, r आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम आंसर आया आपका सोरर्स। ठीक है, अब S1 आपका पॉइंटर इंक्रीमेंट होके यहां पे आ गया, ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होके यहां पे आ गया। फिर तुमने अगली बार e को रिप्लेस कर दिया, e की जगह पे क्या आ गया, o आ गया। तो अब ये आंसर आया कोरोर्स, कोरोर्स। ठीक है, उसके बाद दोबारा तुम्हारा S1 इंक्रीमेंट हुआ और तुम्हारा S2 भी इंक्रीमेंट हुआ, तो r की जगह पे फिर क्या आ गया, n आ गया, यहां पे आ गया n, तो ये प्रिंट हुआ कोरोन्स। ठीक है, फिर तुम्हारा पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया, यहां पे आ गया, ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया, आ गया यहां पे। अब देखो क्या हुआ, अब इस S की जगह पे क्या आ गया, नल आ गया। ठीक है, नल आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब तुमने जैसे S2 को इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे आ गया नल। तो अब ये स्टार S1 अगर तुम करोगे तो स्टार S1 पे क्या आ गया, नल। अब while जो है, while अब यहाँ पे आ गया आपका कैरेक्टर, नल कैरेक्टर आ चुका। ठीक है, आपने रिप्लेस किया S2 के स्टार से, S2 का स्टार क्या था, ये था, ये आपने चेंज कर दिया किसमें, 6 के एड्रेस के स्टार पे। तो वहां पे जो R लिखा हुआ था या S लिखा हुआ था, S में पे आ गया नल। वो नल जैसे ही आपने इसको असाइन किया, S1 को असाइन किया नल, ठीक है, जैसे स्टार S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू थी नल, ये नल आपने असाइन कर दी किसको, स्टार S1 को। तो अभी कंडीशन बन गई व्हाइल नल, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और लूप के बाहर आ गई। ठीक है, तो लूप के बाहर आने के बाद आंसर क्या है, ये है। सो क्लासिकल क्वेश्चन, very very important for product based companies. You should be very thorough with the concept of strings, pointers, recursion, arrays, so on, right? I hope it is clear, guys, right? So keep working hard, take care, love you, bye.